on the behalf of Mahatma Gandhi Vidya Mandir, Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Welcome Principal Professor S. T. Hale sir, Honorable Vice Principal Dr. K. Ahmed sir, Dean Academic Head and CEO Dr. Mubin Nadir sir, IQ and parents. I am all in this online workshop of conflict which has only the welcome you all. First, to make our call in the Jubilee year. So for that, I would like to congratulate to the governing board, our principal, staff members, and all the students for this achievement. Now, for this webinar, for this online workshop, I would like to call our Honorable Dean of the Faculty of Commerce, Dr. Arif Anjum sir, to present the welcome note for today's program. Dr. Arif Anjum sir, what? Thank you. Am I audible? Yes, sir. Thank you so much. Honorable Keshav Shirole Sahib, Salati Officer, Revenue Department, Principal of the College, S.C. Hale sir, Vice Principal Shakib sir, Abdullah Daniel sir, all teachers, Bhaskar sir, all teachers and students. सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम के हमारे जो की नोट स्पीकर है ऑनरेबल केशव शिरोले साहिब का मैं कॉलेज की जानिब से, महात्मा गांधी विद्या मंदिर की जानिब से और तमाम स्टूडेंट्स की जानिब से सर मैं आपका वेलकम करता हूं आज के प्रोग्राम के लिए। और मैं सर का पर्सनली और कॉलेज की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से मैं आपको थैंक्स भी कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफिसर से और एज ए तलाटी ऑफिसर हम समझ सकते हैं कि कितना वर्कलोड होता है काम का, लेकिन फिर भी सर ने अपने टाइम निकाले हैं आज के प्रोग्राम के लिए, कॉलेज के लिए। तो मैं कॉलेज की तरफ से, सभी की स्टूडेंट्स की तरफ से सर मैं आपको थैंक्स भी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ टाइम देने के लिए। और एक बार फिर मैं कॉलेज की जानिब से सर का, तमाम स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you very much for this welcome note. Now it's time to invite for the aims and objectives of today's program. For that, I would like to call Professor Rubina ma'am to present the aims and objectives of today's program. Professor Rubina ma'am, over to you, ma'am. Thank you, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Honorable Principal S.C. Hale sir, Honorable Vice Principal Dr. Shakib sir, Honorable Dean Faculty of Commerce Dr. Arif Anjum sir, Honorable Accuracy Coordinator Dr. Hamdani Rizwana ma'am, Honorable of today's program keynote speaker Honorable Keshav Balu Shirole sir, and Honorable Physical Director Dr. Rizwan Khan sir, respected academic head Dr. Mubin sir, and today a very good morning to all of you. I, Professor Rubina, present here to say aims and objectives of the program. A competitive exam is an examination where candidates are ranked according to their grades and percentile, and then top rankers are selected. The examination is open for all positions. Then the first candidates in ranks pass, the others are rejected. The journey of academic life is highly competitive and a bit complicated for the students to choose the right platform at the right moment. They are used as entrance examination for university and college admissions or to secondary schools. Types are civil service examinations required for position in the public sector, the US Foreign Service Exam, and the United Nations Competitive Examination. In India, G Main and G Advanced and NEET UG and NEET PG and NTAC are some examples of competitive examination.
There are some more types of exam like civil service exam, Indian Economic Service Examination, Indian Statistical Service Examination, Combined Defense Service Examination, National Defense Academy and Naval Academy Examination, and so many are there. Competitive examinations are considered an egalitarian way to select worthy applicants without risking influence, peddling, bias, or other concerns. This type of exam subjects candidates under peer pressure to much stress, while self-motivated candidates find it much simpler. Approximately 10 to 12 lakhs of candidates registered every year. Today, MGB's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, Competitive Exam and Career Counseling Cell has organized a workshop, namely Workshop of Competitive Examination, to make awareness in the students regarding the competitive exam. Hope our students get benefited from this workshop. Thank you. Thank you very much. Over to sir. Thank you very much, ma'am. Now it's time to invite Professor Bhaskar Kharnar sir to introduce our honorable keynote speaker of today's program. For his brief introduction, I would like to invite Professor Bhaskar Kharnar sir. Over to you, sir. थैंक यू अब्दुल्ला सर, शुक्रिया। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय मालेगांव सिटी की ओर से, मालेगांव सिटी के हिंदी विभाग की ओर से मैं भास्कर सुरेश खैरनार आज के प्रमुख वक्ता और मेरे बहुत ही अजीज दोस्त केशव जी का परिचय करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, उनके बारे में अगर कहना चाहूं तो बस थोड़े शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा। हमारे हिंदी के बहुत प्रसिद्ध रचनाकार, 19वीं शताब्दी के जाने माने रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी अद्वितीय कृति रश्मि रथी में कहा है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पूर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुनकर बड़े कीमती लाल। देखिए, इसका आशय यह है कि बड़े बड़े शहरों में, अमीरों के घरों में, या जहां पर सभी साधन सामग्री उपलब्ध हो, वहां पर ही अच्छे पढ़े लिखे बच्चे मिलते हैं। यह एक सामान्य विचार हम सब में फैला हुआ है, लेकिन इस विचार का विरोध करते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि राजाओं के यहाँ ही या राजमहल में ही योद्धा या बड़े बड़े वीर या पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते हैं। वहां अनेक बार राजमहलों से, राजाओं से दूर जंगल में भी मिलते हैं, और ये प्रकृति का बहुत बड़ा रहस्य है और प्रकृति की यह बहुत बड़ी खूबी है कि वह गुदड़ी में, यानी एक गुदड़ी गरीबी का प्रतीक है, गुदड़ी में चुन चुन कर बड़े बड़े लाल रखती है। तो इसी तरह से आज के प्रमुख वक्ता केशव जी का भी व्यक्तित्व है। वह एक छोटे से तलवाड़े नाम के गांव के रहने वाले हैं, और वहां के एक सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ है, और जहां से उन्होंने तलवाड़े से ही अपनी प्राथमिक शिक्षा अर्जित की है। बाद में वह मालेगांव में आकर MSG कॉलेज में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और उसके साथ साथ हम सब मिलकर एक जगह पर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र नाम का DC निकम सर जी ने शुरू किया हुआ मार्गदर्शन केंद्र था, जहां पर हम पढ़ाई करते थे, और वहां पर यह केशव शिरोले जी हम सबके आदर्श रहे हैं, जिन्होंने हर कदम पर हमें मार्गदर्शन किया है। और उनके व्यक्तित्व की और एक खूबी बताना चाहूं तो अगर कहीं पर किसी से मिलने के लिए अगर यह जाते हैं तो वहां पर
जाते समय यहाँ अपनी जेब में जितने पैसे हैं उतने पैसों का बाजार कर लेते हैं और उन सब पर अपनी जेब के सारे पैसे अपने दोस्तों पर लुटा देते हैं। यानी बहुत ही दिलदार व्यक्तिमत्व इनका है। उसी तरह से उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में अगर बताया जाए तो उन्होंने कॉम्पिटिटिव की राज्य सेवा, सरल सेवा, एमपीएससी, यूपीएससी भी ट्राई की है। साथ ही साथ उन्होंने हिंदी से नेट की एग्जाम पास की है और उसी तरह से उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। और इसी के साथ साथ उन्होंने विविध विद्या शाखाओं की किताबों को भी पढ़ा है और इसी तरह से उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज के लिए समय का औचित्य रखते हुए मैं इतना ही उनके बारे में कहूंगा। और अंत में कहूंगा, तितलियां जीती है गुलचमन के लिए, चर्चा उनका हुआ बागपन के लिए। कुछ इस तरह का व्यक्तित्व हमारे दोस्त आज के प्रमुख वक्ता केशव शिरोली जी का है। आगे के सूत्र मैं अब्दुल्ला सर के पास देता हूं और शुक्रिया। Thank you very much, Professor Bhaskar Khairnar sir. Now it's time to invite our honorable keynote speaker of today's program, Mr. Keshav Balu Shirole sir, for enlighten us for his valuable guidance. With this, I would like to invite our honorable keynote speaker of today's program, Mr. Keshav Balu Shirole sir. Sir, over to you. नमस्ते सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मालेगांव की मिट्टी से मैं रूबरू होता हूँ। भास्कर खैरनार जी की ओर से मैं आज फिर से महसूस कर रहा हूँ। इसी संस्था के कॉलेज एमएजी कॉलेज से मैंने बीए एमए किया है और आज आपके सामने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो क्लास 3 की पोस्ट रहती है सरल सेवा परीक्षा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सर्वप्रथम महाराष्ट्र यूपीएससी एमपीएससी की आप जो अभी तक इस मंच पर जो सेमिनार हुए उसकी बहुत सी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की होगी, लेकिन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ग्रेड सी के लिए गट क सेवा भर्ती जिसे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको मेरा परिचय आदरणीय भास्कर खैरनार जी ने कर दिया है। सरल सेवा जो परीक्षा रहते हैं, यानी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, क्लरिकल से लेकर जो पद रहते हैं वो जो एग्जाम है जो सी कलेक्टर रहते हैं उनकी की जाती है। इसमें तलाट है, सेवक, कृषि सहायक, आरोग्य सेवक और जो क्लिनिकल ग्रेड है वो उन पदों का मैं इस संक्षिप्त में परिचय दे रहा हूँ। परीक्षा जो ये 100 अंक के लिए रहती है, यानी एक ही स्टेप में रहता है, इंटरव्यू नहीं रहता, 100 अंक के रहते हैं। उसमें बेसिक वो है मराठी व्याकरण, और वो अंक 100 अंक का जो वो इस प्रकार 25 अंक जो रहेंगे मराठी व्याकरण के रखे गए, 25 अंक इंग्रजी व्याकरण के लिए है, सामान्य 25 अंक है और गणित और बुद्धिमत्ता के लिए 25 अंक है। तो यहाँ से मैं सभी छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि हम जब हमारा शालांत परीक्षा के बाद हम जब कॉलेज जीवन शुरू होते हैं तो यह सोच रखकर आपको क्या करना है। यह मराठी कविता है, उसको उस पक्ती को मैं चाहता हूँ। 2 दिवस दुःखात गेले, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःख गेले, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, किती राहिले डोहीवर उन्हाळे, लाखो वेळा चंद्र उरला, लाखो वेळा चंद्र उरला, रात्र धुंद झाली,
आणि भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद की. यानी कि इंसान रोजी रोटी के पीछे चलता रहता है, सपने लेकर चलता रहता है। उन्हीं सपनों को साकार करने में, उन सपनों को में जो आपको छात्रों को जो ले जो जो यूपीएससी की पहली एग्जाम को केंद्रीय के लिए एमपी ऑफिसर के लिए मैं जिस परीक्षा के बारे में आपको बता रहा हूँ वो सरल सेवा भर्ती है। मैंने आपको सब कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, यानी कौन कौन से रहते हैं, उनको आपको परिचय देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे भास्कर सर ने जी बताया कि उर्दू के छात्र है, तो उर्दू के छात्रों को मराठी विषय पढ़ाना होगा इसमें। तो उस मराठी विषय के लिए जो है वो क्या क्या तैयारी करना है, यानी जो महाराष्ट्र की तरफ से 8वीं को स्कॉलरशिप का एग्जाम लिया जाता है, उसकी जो रेफरेंस बुक है वो आप यूज कर सकते हो। 8वीं पहले 7वीं को आप 8 यानी 8 जो बुक्स है वो करते हो व्याकरण के लिए। तो ये जो व्याकरण के इन्होंने बहुत से अच्छे से समझाया है मौलाना सर के। और बाद में और एक लेखक है जिसमें आप मराठी की तैयारी कर सकते हैं। तो आपके उर्दू छात्रों के लिए थोड़ा नया विषय रहेगा, लेकिन आप सभी के लिए ये अच्छा अच्छे अंक देने वाला विषय। मराठी के बाद जो विषय आते इस तरह भर्ती में जो है अंग्रेजी है। अंग्रेजी आपको परिचित है। अंग्रेजी के लिए आप बेसिक से जो लेखक अच्छे वो पालन सूरी की और रेन एंड मार्टी, ये दो बुक्स है। उस बाळा साहेब शिंदे जो लेखक है उन्होंने भी मराठी माध्यम अंग्रेजी का अच्छी तरह से समझाया है। तो इन दोनों विषयों में ये जो किताबें इनमें से आप अंग्रेजी की तैयारी करते हो। अब मराठी के 50 अंक हो गए, अंग्रेजी के 50 अंक हो गए। उसके बाद जो विषय आता है गणित और बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता जिसे कहते हैं, गणितीय बौद्धिक क्षमता, ये भी बेसिक लेवल से ही रहता है। 8वीं की जो स्कॉलरशिप की किताबें है वो आप यूज कर सकते हैं। गणित के लिए पंडरीनाथ राणे एक लेखक है, उनकी किताब अच्छी है। सतीश वस्ते है, उनकी भी किताब अच्छी है। बुद्धिमत्ता के लिए आप अनिल अंकलगी सर जी है, उनकी किताब बहुत अच्छी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और जो बेसिक स्कॉलरशिप की किताबें है वो आप यूज कर सकते हैं। इस तरह आप सब जोड़कर 25 मार्क्स अंग्रेजी, 25 मार्क्स सामान्य, गणित बुद्धिमत्ता 25 मार्क्स, 50 मार्क्स हो जाते। और जो बचे हुए 25 मार्क्स सामान्य ज्ञान के लिए जीके आप जनरल नॉलेज कहते हैं। तो जनरल नॉलेज में ऐसे बहुत सिलेबस, मतलब ऐसे पूरे घटकों का समावेश उनमें से हो जाते। तो इसके लिए आप जीके यानी सिलेबस बहुत वास्ते अंक से, और जो किताबें है वो बाजार में बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। जो आपको सोर्स है वो जो है 25 मार्क के लिए आपको जो महाराष्ट्र की तरफ से लोक राज्य पब्लिश होता है, हर महीने में आता है वो लोक राज्य मासिक आप ले सकते हैं और उसमें से नोट्स तैयार करके रख सकते हैं। बाद जो सका या पेपर है उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। अभी ये होने के बाद इस घटक में आप पूरा जो शांत अभ्यासक्रम है, यानी 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक वो पूरा रहता है। इसमें इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स यानी सब सब्जेक्ट का समावेश होता है। ये कुल मिलाकर इस तरह से 100 अंक हो जाते हैं। ये इन सभी किताबों का आप बारीक से स्टडी करो, उसके नोट्स निकालो, और जो FIBA, BCom, BSc जिस तरह में हो वहाँ से शुरुआत करो।
और इस तरह से आप प्रयास करोगे तो एक गवर्नमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रेड सी के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो। इसका ये इस एग्जाम के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। परीक्षा के परीक्षा 200 मार्क की रहती, 100 अंक की रहती, 100 अंक 200 अंक रहते, नंबर क्वेश्चन रहते, और इसके बाद इंटरव्यू नहीं रहती, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके लिए सिर्फ पात्रता तो है, आप ही फैकल्टी से ग्रेजुएट हो वो MSIT या MSIT जो रहते हैं गवर्नमेंट कोर्स करना चाहिए और टाइम होनी चाहिए। इस परीक्षा का प्रारंभिक और मैंने आपको परिचय दिया है, आप मन लगाकर अभ्यास करो। कुछ इसके बाद में कोई दिक्कत होगी तो भास्कर जी है आपको गाइडलाइन के लिए, मेरा नंबर वो आपको दे देंगे। भास्कर सर जी, हेलो, आपने हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। इस तरह से ये मैं धन्यवाद। केशव जी, आपकी आवाज कट रही है, जरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद ना। हाँ ठीक है, बोलिए, अभी आ रही है। हाँ आ रही है अभी। अभी जानकारी दे दी मैंने। Okay, thank you very much. Welcome. क्या We are grateful to you. आपके आर्ट साइंस कॉमर्स सिटी कॉलेज का मैं आभारी हूँ। आपने मुझे जो जानकारी थी वो मैंने मेरे अनुभव के माध्यम से आपको प्रस्तुत की। धन्यवाद। Okay. Thank you. A very informative session, and we have our Hello, Yes, am ma'am. I audible, sir? Yes, ma'am. Okay. Honorable Principal H.C. Hale, sir, respected Vice Principal Dr. Shakib Ahmed, Dean of the Commerce Department Dr. Arif Anjum, sir, IQAC Coordinator Rizwana Hamdani, ma'am, Academic Coordinator Dr. Mubin Nazir Ahmed, sir, and my dear colleagues and respected invited guest Keshav Balu Shirode, sir. Good morning to everyone. Here I am feeling privileged to present vote of thanks on the behalf of our college on this special day of workshop regarding competitive exam. Here I would like to show my gratitude to our invited guest Keshav Balu Shirode sir that he spared his time and provided us fruitful information. I would like to extend my gratitude to H.C. Hale sir and principal and vice principal and Dr. Arif Anjum sir and the other staff members. And at the last, I would like to say thank you to HODs of the departments and the organizing committee. Special thanks to Bhaskar sir and Abdullah Danial sir and Rubina ma'am. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Now it's time to declare the end of program. So again, I would like to thank our honorable keynote speaker of today's program, Keshav Balu Shirode sir, for his sparing the time with us. Thank you very much, sir. With this, I would like to declare the end of the program. Thank you very much, everyone.